ट्रंप एकदम संभल जाएंगे? डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है उसे आप थोड़ा ध्यान से सुनिए और उसके बाद भारत में क्या चल रहा है ये भी आपको बताते हैं। क्यों मोदी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, जरा इस बयान को सुनिए। आपने सुना भी होगा, मैं दोबारा सुना रहा हूं। Very sick neighbor. It's not a neighbor, but it's close to a neighbor. And that's Venezuela. It's very sick. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. And he's not going to be doing it very long, let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long. He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. So there will be an operation by the U.S. and It sounds good to me. Secretary Rubio mentioned. You know why? Cuba Because they yesterday. kill a lot of people. Yeah. Secretary Rubio mentioned Cuba yesterday in his remarks. Does the U.S. have a plan to do something? Well, Cuba always survived because of Venezuela. Now they won't have that money coming in. They won't have the income coming in. You know, a lot of Cubans were killed yesterday. You know that. A lot of Cubans were killed. Do you know how many? The bodyguards. No, they're looking, but there was a lot of death on the other side. No death on our side, but there was a lot of death on the other side, unfortunately. But a lot of Cubans were killed yesterday, trying to protect him. There's been protesters killed in Iran. You said we were locked and loaded, ready to go. What is the line there for when the U.S. is going to get involved in those protests? We'll take a look. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. I understand something. We talk a lot about legislation, and we have great legislation coming. You want to tell us? So the tariff bill, so here's what I believe. I don't think we could have secured the border without the threat of tariffs. I don't think we'd have a European trade deal without the threat of tariffs. So if you want to end this conflict, then put pressure on Putin's customers. He sanctioned the two largest oil companies in Russia, which is the biggest pressure anybody's put on Putin since the war started. But we have 85 co-sponsors to give this president... It's hurting Russia very bad, the sanctions. Oh, yeah. So this bill would allow... And India also is full. Yes, sir. So he put a 25% tariff on India for buying Russian oil. I was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? This stuff works. So I'm hoping we'll bring the bill up, and it's from 0 to 500. He picks the number. Nobody else does. But if you're buying cheap Russian oil, keeping Putin's war machine going, we're trying to give the president the ability to make that a hard choice by tariffs. I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. So I hope we pass this bill soon. And after this... They wanted to make me happy, basically. He wanted to... Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy. And it was important to make me happy. They do trade. Yeah. And we can raise tariffs on them very quickly, and it would be People are very afraid bad of that. for them. You have to do something with Mexico. Mexico has to get their act together because they're pouring through Mexico, and we're going to have to do something. We'd love Mexico to do it. They're capable of doing it. But वापस आइए। अब देखिए, ये कोलंबिया को कह रहा है कोकीन का। जिस देश के खिलाफ इनको कुछ बोलना होता है तो उसको ड्रग, किसी को कोकीन, किसी को अन्य ड्रग के मामले में ये बोलता है कि ये वहां से उसकी ट्रेडिंग कर रहा है। भारत के बारे में कह रहा है, और इनका जो चंपू है वो कह रहा है कि 25% टेरर को भारत फंड कर रहा था। अगर रसिया से तेल खरीदता है तो रसिया जो टेरर फैला रहा है पूरी दुनिया में यूक्रेन के खिलाफ वॉर करके, ये सब में भारत की सहभागिता थी। और हमने, उसका जो चंपू है वो कह रहा है कि हमारे प्रेसिडेंट ने प्रेशर बनाया और भारत झुक गया। ये सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट ही कह सकते हैं। जब ऐसा कहा तो ट्रंप ने कहा नहीं, मोदी इज ए गुड गाय एंड ही वांटेड टू मेक मी हैप्पी। वो मुझे खुश करना चाहते थे। उनको मालूम है कि मैं उनसे नाराज हूं। ये वीडियो देखा आपने? दूसरा वीडियो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, फिर कोरिलेशन, और फिर मैं पूरा जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से कहां भारत को खड़ा किया जा रहा है, कैसे
मोदी के लिए आने वाला 2 महीने के बाद का दिन कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है और क्यों डोनाल्ड ट्रंप बार-बार मोदी को अपमानित करने का रिस्क ले रहा है। लगातार, ऐसा नहीं है कि पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया है। सिंदूर में किया और अब ऑपरेशन सिंदूर में किया और अब इन्होंने जो अपमानित किया वो सबके सामने है, दुनिया के सामने है। अब जरा ये वीडियो देखिए जो अपने ही सॉइल से आ रहा है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से आ रहा है। कल एक वर्डिक्ट आया है जिसमें उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत नहीं मिली। इसके विरोध में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्टूडेंट क्या कह रहे हैं? वो स्टूडेंट हैं या कोई और हैं? वेनेजुएला, डेनमार्क, ग्रीनलैंड और उसके बाद उधर मैंने आपको बताया था कि ईरान में तो रिजिम परिवर्तन का पूरा खेल चल रहा है। सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात में अलग झगड़ा चल रहा है यमन को लेकर के। इजराइल की नजर ईरान पर बनी हुई है, लेकिन भारत में माहौल गर्म किया जाएगा। कैसे गर्म किया जाएगा वो सुनिए और फिर अभी 2026 में जो 3-4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसके पहले क्या-क्या माहौल होने वाला है, ये सुनिए जरा सही इस वीडियो को, तब मैं आपको आगे तफसील से बताता हूं। ये देखिए, कह रहे हैं कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। भगवा आतंक फैला है देश में। ये जेएनयू के स्टूडेंट बोल रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं। मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। किस लिए? क्योंकि शर्जिल इमाम और उमर खालिद के पक्ष में सबूत इतने थे जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल देने से मना कर दिया। बाकी को दिया, लेकिन शर्जिल इमाम और उमर खालिद को नहीं दिया बेल। और अभी पूरे कैंपेन चलाए जा रहे हैं कि जुडिशरी जो है वो ठीक निर्णय नहीं दिया है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी और शाह ऐसा निर्णय नहीं करवाने दे रहा है। ये पूरा कैंपेन चलेगा अभी रिजीम चेंज का। और जब उधर डेनमार्क, ग्रीनलैंड को अमेरिका ले लिया होगा, तब अमेरिका अपनी चौधराहट पूरी दुनिया में साबित कर चुका होगा और ये वाटर टेस्ट कर रहा है। फ्रांस नहीं आएगा, जर्मनी नहीं आएगा, जापान नहीं आएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं आएगा, इंग्लैंड नहीं आएगा। चाइना भी चुप रहेगा, रसिया भी चुप रहेगा। कैसे चुप रहेगा साहब? अब इसमें कहानी देखिए क्या है। ग्रीनलैंड और डेनमार्क यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, लेकिन ग्रीनलैंड और डेनमार्क नाटो का हिस्सा नहीं है। कैच देखिए, कितनी बारीकी से काम हो रहा है। कैच देखते जाइए। ग्रीनलैंड, डेनमार्क नाटो का हिस्सा नहीं है। नाटो के एक प्रकार से लीड करता है अमेरिका, जो 32 देश है नाटो के मेंबर। उसको नाटो में पत्ता नहीं हिलता है जब तक डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं बोलेगा। मतलब अमेरिका जब तक कुछ नहीं बोलेगा, नाटो कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं भी डेनमार्क, तो यूरोपियन यूनियन वाले बोलेंगे साहब इसमें मेरी क्या गलती है, ये तो नाटो अगर कहे तो बात मान सकते हैं हम। नाटो के मेंबर हैं नहीं आप। यूरोपियन